हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो है चैप्टर, जिसमें आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री, यानी भारत के इतिहास को समझना। सबसे पहले तो हमारा भारत का इतिहास समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि भारत का इतिहास क्या है। ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन कि बीए वाले बच्चों के लिए भी जो है ये कई मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। I have a most important chapter doing here, understanding Indian history. There is a most important topic arrive here, non-literacy source. Non-literacy source here, the first here, inscription. Inscription is the most important source here. The inscription are the permanent written engraved on the hard surface such as stone, metal, or is a terracotta. There is the most important here, the permanent written here. There are stone, metals and terracotta. The study of inscription is called epigraphy. The study of the inscription is called to the epigraphy. Their earliest inscription were written on a stone, and they usually record to the achievement, activities and idea of those who got them to inscribe. And so we get inscriptions, and which is a glorif their exploit of a kings or a mention of donations made by the man woman for a religious purpose. These inscriptions which are there composed by poets in the period of kings and peloton, and now as a Parasastrics is a sum is inscription carry of date, other are the dated on the basis of the paleographic styles of written, with a fair amount of the precautions and the precisions, and the earliest inscription were a Prakritic, a name for a language user ordinary people. In the later time, Tamil and Sanskriti were also used to be written to the inscription. The Maurya king Asok was the first person to issue the inscription. There is the most important, note the point, the Mauryan king Asok was the first person to issue the inscription. There is start of the Asok for the written inscription here, and most of the inscription is a Prakritic language. There is a Prakritic language is the most important this time, and written in the Brahmi script through there, some in the northwest. Written to the Karaksi is the Aramaic and Greek script were used for the inscription in the Afghanistan, so that their local people could be understand their subject matter. That is the most important. The Brahmi script was the first is deferred in the 1837 by James Prinsep, who was a civil servant during to the British rule. The Brahmi was the written from the left to right like a Hindi, will a Kharosthi from right to left. Asokan, his inscription helped to the greatly his understanding his religious and administrative policy. For the 1st century BC, the king started to the grantings land to religious people. The Satyavadhan king of the decline were to the first one to be do so. And this inscription recorded the consequence and the granted to be done is receive a grant.
is a journey that is received of grant such as inscription help in us in the finding out of religious and economical activity of period. Some of these inscriptions are written on stone, but most on copper plate. The copper plate used on this time. The copper plate is a character where is probably give as a record of the transgression to those who is received the land and were a granted consequence. That is the most important here. However, there is some limitation of the inscriptional and evidence. For example, some time letters are very faintly is engraved and thus the reconstruction are uncontaining. Also, inscription may be damaged or later missing. Besides, it is not always too easy to be sure about the exact meaning of the word used in the inscription, and some of which may be specific to a particular place or time. यदि हम बात करें गैर साहित्यिक सूत्र में, तो ये भी जो है कई मायने में इतिहास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यानी गैर साहित्यिक सूत्र देखा जाए तो सबसे पहले हमारे समक्ष होता है अभिलेख। कहते हैं अभिलेख जो थी बहुत इम्पोर्टेंट था, और ये पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी आदि जैसे सख्त सतह पर जो है खरोच कर उकेरी हुई लिखावट को जो है अभिलेख कहते हैं। यानी उस समय अभिलेख जो होती थी पत्थर, धातु और पकी हुई मिट्टी आदि जैसे सख्त चीज़ों पर खुरच के लिखी जाती थी। इनका अध्ययन जो है पूरा लेखन विद्या के अंतर्गत होता था। ऐसे बिल्कुल ही आरंभिक लेख शिल्पों तथा पत्थरों पर खुदे हुए भी मिलते हैं। आमतौर पर इन्हें जो है खुदवाने वाली की जो है उपलब्धियां, क्रियाकलाप और विचारों का विवरण भी मिलता है। यानी जिन्होंने खुदवाया है उनमें क्या उनकी उपलब्धियां थी, क्या क्रियाकलाप था, क्या विचारधारा था, तो इन बातों को जो है इस पर अभिलक्षित की गई थी। इसलिए हमें जो है ऐसे शिलालेखें मिलते हैं जिनमें राजाओं की जो है यशोगाथा होती थी, यानी राजाओं के बारे में विस्तृत जो है इंफॉर्मेशन होती थी। ये लोगों द्वारा धार्मिक उद्देश्यों से किए गए दान पुण्य का उल्लेख भी मिलता है। कवियों ने राजाओं तथा आश्रयदाताओं का प्रशंसा में ऐसे जिन अभिलेखों की रचना की थी उन्हें जो है प्रासंगिक कहते हैं। कुछ उत्कृष्ट लेखों में तारीखों दी हुई है और अन्य के समय का अनुमान पुरालिपिक शास्त्र या लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सटीकता से लगाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल ही आरंभिक शिलालेख जो है प्राकृतिक में मिलते हैं जो आम लोगों की भाषा थी। आगे चलकर इनमें तमिल और जो है संस्कृति का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। शिलालेख जो है लिखवाने वालों में सबसे पहला नाम जो है मौर्य सम्राट अशोक को जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है कि सबसे पहला जो है शिलालेख पे लिखवाने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो सम्राट अशोक को प्राप्त है। उनके अधिकतर शिलालेख जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई प्राकृतिक भाषा में ही है। हालांकि उत्तर पश्चिम मिले कुछ शिलालेखों की जो लिपि है खरोष्टी लिपि भी मानी गई है। अफगानिस्तान में मिला शिलालेख जो है अरामाइका और जो है ग्रीक लिपि है ताकि स्थानीय लोगों ने लिखी हुई बातें समझ सके। ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप को जो 1837 जो है सफलता मिली थी। कहते हैं प्रिंसेप जो है ब्रिटिश शासन में सिविल सर्वेंट थे और ब्राह्मणी हिंदी जो है देवनागरी की ही भांति बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेखों से हमें उनके धर्म तथा प्रशासन संबंधी नीतियों को समझने में बहुत ही सहायता मिलती है। कहते हैं ईसा पूर्व पहली सदी से राजा जो धर्मार्थ भूमि के दान करने लगे थे। सबसे पहले दक्कन के सतवाहन राजाओं ने ऐसा दान शुरू किया था। कहते हैं उत्कर्णीय लेखों में ऐसे दाताओं और दान प्राप्त करने वाले का विवरण खुदा मिलता था। ऐसे लेखों से हमें उस युग की धार्मिक तथा जो है आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इनमें से कुछ लेख पत्थरों पर पाए गए हैं, पर अधिकतर लेख जो है तांबे के पत्थरों पर मिलते हैं। तांबों के पत्थरों पर जो है खुदे अभिलेख जो है शायद भूमि पाने वालों के हितों में भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में तैयार किया जाता था। कहते हैं आज के समय में बहुत से हमारे पास जो है सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उस समय जो होता था कोई अगर भूमि बेचा जाता था तो तांबे के पत्र पे जो थी खुदवाई जाती थी और उसका जो है सिग्नेचर वहाँ पर लिया जाता था। तो कहते थे ये जो प्रमाण होती थी बहुत ही साक्ष्य रूप में उपलब्ध होती थी।
मगर इस प्रकार के लेखों का प्रमाण के तौर पर पूरी तरह से स्वीकारने में कुछ बाधाओं भी थी। अब क्या बाधाएं थे? उदाहरण के लिए कई अक्षर जो थे काफ़ी हल्के कूदे होते थे, इसलिए उन्हें पूरी तरह से पढ़ना समझना संभव नहीं होता था। इसके अलावा कहीं कहीं लिखावट घिस गई थी और कुछ अक्षर गायब भी हो गए थे। यह भी हो सकता है कि कुछ शब्दों के अर्थ हमारे जो सामने स्पष्ट न हो सके क्योंकि वे किसी विशेष स्थान या समय से जुड़े हों। तो कहते हैं ये सारी जो बातें थी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट था शिलालेख के अंतर्गत, जो कि इतिहास को समझने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। The second point here, a knowledge test is there as a coin. There is the most important here. The coin is the most important for the ancient period is the recognized. There is the study of the coins is known as the is a numismatics, and it does not only include the visual element such as the script and the image on the coin, but also is a metaphysically analysis. Ancient coins were mostly is minted in the metals such as copper, silver, gold, and the lead. The earliest coin found in the India contained a symbol and were is called punchmark coin. They were is the made of the silver and copper. And the 6th century BC onward, the first coin to bear the name and the image of ruler were to the issue by the Indo-Greeks, and who established control over to the northwestern part of the subcontinent. And 2nd century BC, their first gold coin were issued by their Kushan. That is the most important here. The Kushan is the founder of gold coin were issued by the Kushan. And next year, 1st century AD, the some of the most spectacular gold coin were issued by the Gupta rulers. That is also important. There are some of most spectacular gold coin were issued by the Gupta rulers, and their earliest issue are remarkable for their purity of gold content. There is the most important here. The coin provide the useful information regarding to economical history as they are used as a medium of exchange. Some coin were issued by the guilds or association of the merchant and craftsmen with the permission of the rulers. This shows the influence of the craft and the commerce. Coin also is a king and the goods, and content is a religious symbol, all to which they wrote the light on their art and religions of their time. That is the most important here. A coin provides useful information regarding economic history as they were used as a medium of exchange. यदि यहाँ पर हम बात करें सिक्के को, जिससे हम जो है पुरातन समय की जो विचारधारा थी, पुराने समय की जो खोज थी, वो सिक्का जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है। तो सिक्के का अपना एक महत्व रहता है प्राचीन जो है इतिहास को जानने में। ठीक है, तो कहते हैं सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। आपको पता है ये सिक्कों का अध्ययन जो करते हैं मुद्रा शास्त्र कहलाता है, और इसके अंदर सिक्कों पर जो है उकेरी हुई लिपि और जो है आकृतियाँ जैसे दृश्य तत्व ही नई धातुओं को जो है विशेष जैसे तत्व भी आ जाते हैं। प्राचीन सिक्के अधिकतम तांबा, चांदी, सोना और सीसा जैसी धातुओं से ढाले जाते थे। भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ प्रतीक बने होते थे और इन्हें आहत यानी पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये जो है ईसी पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद से आरंभ हुआ। चांदी और तांबे के ढाले होते थे और पहल जो है जिन सिक्कों में शासकों के नाम आकृतियाँ दिखाई देती थी उन्हें भारतीय यूनानियों ने जारी किया था, जिनका जो है ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी के लगभग इस जो है उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी भाग पर नियंत्रित स्थापित हो चुका था। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इसी की पहली सदी के लगभग जो कुषाणों ने जारी की थी, और कुछ बहुत ही दार्शनिक जो है स्वयं मुद्राएं जो है गुप्त वंश के शासकों ने जारी की थी। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है यूपीएससी एग्जाम के लिए कि जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो थी ईसा की पहली सदी के लगभग कुषाण ने जारी किया था, यानी कुषाण वंशों ने ये जो है सोने के सिक्के जारी किया था। लेकिन कुछ बहुत दार्शनिक स्वर्ण मुद्राएं जो है गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात आती है। इनमें प्रारंभिक मुद्राएं इनके सोने की शुद्धता के लिए जानी जाती थी, यानी उस समय जो था सोने की जो शुद्धता थी वो बहुत काफ़ी उत्तम थी।
सिक्के क्योंकि विनिमय लेन देन के माध्यम के रूप में काम में लिए जाते थे, इसलिए उनके आर्थिक इतिहास के बारे में उपयोगी जानकारी भी मिलती है। कुछ सिक्कों शासकों की अनुमति से व्यापारियों और दस्तकारों को संघों द्वारा भी जारी किए जाते थे और इससे दस्तकारी और वाणिज्य के प्रभाव का पता चलता है। सिक्कों पर राजाओं और देवताओं की आकृतियाँ भी दिखाई देती है और धार्मिक प्रतीक भी। इन सबसे उस समय की कला और धर्म का प्रकाश पड़ता है कि उस समय धर्म और कला किस प्रकार से थी। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है सिक्कों के अध्ययन से। दोस्तों सिक्कों के अध्ययन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें उस समय के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहते हैं पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे वो अपना विशेष गुणों का वो सिक्कों पर ही बखान करते थे। कई जगह समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये सब सारी बातें जो होती है सिक्कों पर ही दर्शाया जाता है। इससे पता चलता है कि उनकी क्या महत्व थी। कई जगह पर आपने देखा भी होगा और इस बात को एहसास भी किया होगा कि सिक्के पुराने तत्वों को अध्ययन करने के लिए बहुत ही उत्तम सामग्री के रूप में देखा जा सकता है। The next topic is here archaeology. There is the most important here. The materials remain of the past can be studied with the help of the archaeology, as archaeology is the science that is enable used to the systematically is a dig the successive layer of the old mounds and to form on the idea of the material life of the people of the past on the basis of the remaining founder there. Archaeology is a very important to study of the history, and there is a period before the invention of written. The history is basically based on the written material. Through the written was known as the Indian by 2500 BC in the India's culture. Its script has not so far been to the disappeared. Through there is the Harappans and now how to written, but is the historians have not been to the able to read it. Their culture is a place in the period called to the periodic historic phase. The first script of the deciphered was the Brahmi, which was used in the Ashokan inscription, and it is belong to the 3rd century BC. There is a most important here archaeologists here, and there is Harappan cultures is the most important. There is the read. The excavations has both to be like the tools of earlier human in a Indian going as back as a 7 lakh year. They excavated is a site belonging to the Harappans period, show the layout of their settlement and the form of the houses in which the people lived. The types of poetry is tools and the implement they use and the kind of the material there is a consumed. In South India, some peoples were buried along with their tools, weapon, poetry and other belonging under big and heavy stones. And this is a grass is known as the Malathas, and by the diggings them we learn about their life of people who live in the Deccans and the South India before the 3rd century BC. The date of remain found in the excavations are fixed by the various methods. The most important of them is the radiocarbon or carbon 14 a dating method. There is a most important here. There is a dating of method or carbon dating method. Radiocarbon is a 14 is informed to the edge of the same time, and the carbon 14 is a radioactive carbon present in all living objects. Is a decline like all the radioactive substance as a uniform is a rate when to object is a dead. By measuring the loss of C14 content in the ascent object is a bird's bone and its age can be determined. There is a most important here carbon 14 या radiocarbon or carbon 14. There is a most important from to the bird and bone is age can be determined. The history of climate and the vegetation is known through their examination of the plant residues and especially through the pollen analysis. On this basis is the suggested that agriculture was a pesticide is a Kashmir and Rajasthan around 700 to 600 BC. The nature and the component of the metal artifact
can also be analyzed to scientifically, and consequently is the mine from which is the metal were obtained are located and stage in the development of metal technology identified. The geologically here a study provides an idea of the history of soil, rock, etc. Where is a prehistoric is man live, and human histories cannot be understood without an idea of the continuous interaction between the soil and plants and animals on one hand and the humans on the other. Taken together with the archaeologically is remind is geologically and biologically study act as an important source for the reconstructions and development of human history. यहाँ पर देखा जाए तो हमारे समक्ष जो आया है पुरातत्व। तो ये पुरातत्व क्या है? पुरातत्व जो होती है पुराने समय से मिले हुए कुछ अवशेष। कहते हैं अतीत के भौतिक अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व की सहायता से होती है, जो हमें पुराने टीलों की तहों की एक के बाद एक जो व्यवस्थित रूप से खुदाई करना और इसके द्वारा मिले जो है अवशेष के आधार पर बीते युग के मनुष्य के भौतिक जीवन के बारे में अनुमान लगाना सिखाता है। इसलिए पूर्व काल अथवा लेखन का आविष्कार होने के पहले के युग के अध्ययन के लिए जो है पुरातत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास जो है मूलतः लिखित सामग्री पर आधारित होती है। हालांकि भारत में जो है 2500 ईस्वी पूर्व में भी सिंधु घाटी संस्कृति के कला में लेखन का प्रचलन हो चुका था, पर उस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस प्रकार जो है हालांकि हड़प्पा वासी लिखना जानते थे, पर इतिहासकार उस लेखन को पढ़ नहीं सके, तो जो कि पुरातत्व के अंतर्गत आता है। कहते हैं समय भी जो लोग थे समझदार थे, लिखना पढ़ना जानते थे और समझते थे कि इसका क्या महत्व है। लेकिन देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के कल्चर को जो है लिखी हुई स्क्रिप्ट जो है आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, जो कि बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ रखती है। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के कल्चर उनकी संस्कृति का आरंभिक इतिहास दौर में रखा गया था, जिसको सबसे पहली लिपि को पढ़ा जा चुका है वह है ब्राह्मणी, जो कि ईसा पूर्व तीसरी जो है सदी के लिपि है और अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भी हुई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ आता है। कहते हैं खुदाई के द्वारा भारत में 7 लाख वर्ष पहले रहने वाले मानवों के द्वारा प्रयुक्त औजार तक हमें मिले हैं, और हड़प्पा के जो है स्थानों खुदाई से वहाँ की जो है बस्तियाँ, योजनाएं, लोगों का निवास स्थान स्वरूप का भी पता चला है। साथ ही यह भी पता चला है कि वे मिट्टी के किस प्रकार के बर्तन जैसे औजार और उपकरणों और किस प्रकार के खाद्यान्नों का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों को उनके मिट्टी के बर्तनों, औजारों, हथियारों और अन्य निजी वस्तुओं के साथ साथ बड़े बड़े भारी पत्थरों के नीचे दफनाया जाता था। इस कब्रों को जो है महापाषाण जो है मेगालिथ कहा जाता था, और इसकी खुदाई से हमें 3वीं सदी ईस्वी पूर्व के पहले दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात भी आता है कि उस समय के जो है बड़े बड़े हमें दफनाए गए चीज़ों के बारे में जो है इन्हीं चीज़ों से पता लगता था। कहते हैं खुदाई में मिले अवशेषों की जो है प्राचीनता या उम्र का निर्धारण कई पद्धतियों से होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि रेडियो कार्बन या कार्बन 14 यानी C14 कला निर्धारित पद्धति थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 14 क्या होता है। देखिए कार्बन 14 जो होता है उस समय के जो हमें अवशेष मिले थे उसको जो है कार्बन 14 से जो है हम उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितना साल पुराना हो सकता है, और ये मेथड जो है रेडियो कार्बन या कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जो है विवेकनशील कार्बन है जो सभी प्रकार के जीवनधारियों में होता ही है। जीवधारियों की जो है मृत्यु के बाद सभी जो विवेकशील पदार्थ की तरह ही ये भी एक निश्चित सामान्य गति से जो है नष्ट होता रहता है। किसी भी प्राचीन पदार्थ लकड़ी हो या हड्डी को जो है उम्र का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके C14 तत्व किस सीमा तक हर्ष हुआ है। यानी इससे हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस जो है पदार्थ का जो है उम्र कितनी है, चाहे लकड़ी हो चाहे हड्डी हो, क्योंकि उसमें जो है कार्बन का जो है लुप्त होना, हर्ष होना वो दर्शाता है कि वो कितना पुराना है। मौसम और वनस्पतियों के इतिहास का पता जो है पौधों के अवशिष्ट अंशों और मुख्य पराग के विश्लेषण से लगता है।
इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि कश्मीर और राजस्थान में जो है 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के लगभग भी खेती होती थी। धातु की बनी वस्तुओं के प्राकृतिक तथा उसके अवयवों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है और इसमें जो है उन खदानों का भी पता चल सकता है जिनसे ये धातु निकाली गई थी। इस प्रकार धातु के प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी के विकास के चरणों को भी हमें पहचाना जा सकता है। कहते हैं भूवैज्ञानिक अध्ययन से जो है ऐतिहासिक मानव के निवास स्थल की मिट्टी और चट्टानों आदि के इतिहास का अनुमान भी हो जाता है। जब तक एक और मनुष्य दूसरी और मिट्टी, पौधे और पशुओं के निरंतर जो है पारंपरिक संपर्क को न समझा जाए तब तक जो है मानव इतिहास को भी नहीं समझा जा सकता है। पुरातात्विक अवशेषों के साथ ही भूवैज्ञानिक और जो है प्राणी शास्त्र के अध्ययन का योग्य मानव इतिहास की पुण्य संरचना और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में देखा जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है कि प्रागैतिहासिक मानव की निवास स्थल की मिट्टी, चट्टान आदि के इतिहास का अनुमान भी हमें लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भूवैज्ञानिक और प्राणी शास्त्र का अध्ययन का योग जो है मानव इतिहास का पुण्य रचना और विकास के महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में भी यहाँ देखा गया है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।